Yes, dear students, today's topic is scalar product. Scalar product is said to be when when two vectors are multiplied or two physical quantity which are vector are multiplied and their resultant will be a scalar quantity, then it is said to be scalar product, also known as dot product. कैसे? When force and displacement are multiplied. Force is a vector quantity, displacement is a vector quantity, and the product or multiply of both of them physical quantity will be work, and work is a scalar quantity. So it is said to be scalar product or dot product. Scalar or dot product. Dot product. Then how it will represent? Suppose vector, I have taken here vector H along the x-axis, vector B at an angle of theta with the x-axis, then the product of both vector A and B, vector A, vector B, means first physical quantity of vector, second physical quantity of vector, and multiply both of them is represented AB cos theta means magnitude of vector A, magnitude of vector B. मैग्नीट्यूड के लिए मैं यहीं पर साइन और लगा देता हूं, ये mod of A, mod of B, cos theta. Similarly, W equal to FD, force into displacement. force into displacement को भी क्या लिखेंगे? F dot D equal to FD cos theta. FD cos theta यानी magnitude of first vector, magnitude of second vector, and angle between them, that is known as scalar or dot product. Is it clear? Dear students, there is a main component of scalar product is angle between both vector. If theta equal to 90 degree, theta equal to 90 degree, then W equal to FD cos 90, cos 90 0, that is work will be 0. शायद अभी हो सकता है समझ नहीं हो. मैंने कहा सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैंने फोर्स ऊपर से परपेंडिकुलर लगा दिया, परपेंडिकुलर फोर्स पर ऑब्जेक्ट आगे डिस्प्लेस नहीं होगा, दैट इज द नेट वर्क डन विल बी 0. नेक्स्ट, suppose force and displacement both are in the same direction. ऑब्जेक्ट इनिशियल कंडीशन पर ये था P1 पोजीशन पर, दोबारा में P2 पर आ गया, तो फोर्स से इसको स्ट्रेच खींचा जा रहा है. क्लियर? एंड देन इफ फोर्स इज अप्लाइंग इन द सेम डायरेक्शन, सपोज फोर्स को इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर दो और सेम डायरेक्शन में आप स्ट्रेच करेंगे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? मींस इफ थीटा इक्वल टू 0, देन वर्क इक्वल टू F into D cos 0, and cos 0 मैक्सिमम 1 होता है. क्लियर? तो यहां भी इसी तरह से लिख लो मैं, if theta equal to 0, then A dot B equal to AB cos 0, cos 0 1, that is A and B. If theta equal to 90, then vector A dot vector B equal to AB cos 90, और cos 90 कितना होता है? 0 के बराबर. It means if two vector are at an angle of 90 degree, then their resultant, their product will be 0. For example, मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूं छोटा सा. Vector A, vector B, vector A, vector B at an angle of theta. That vector A dot vector B
equal to 0. Similarly, if vector A, vector B, vector A, vector B, theta equal to 0, theta equal to 0, then vector A dot vector B equal to AB cos 0 or cos 0 maximum, that is AB. Is it clear? Clear? ठीक है, चलिए. Yes. Yes. Same. X-axis, Y-axis and Z-axis. We know X-axis component represented by I unit vector. Y-axis component represented by J unit vector. And Z-axis represented by K unit vector. Clear? Now, scalar product of X and Y component, scalar product of Y and Z component, scalar product of Z and X component. Clear? तो देखिए, component of I is X axis and Y. Sorry, X dot Y. I unit वेक्टर, J unit वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा बताएंगे. I J cos 90, because angle between X and Y is 90 degree. Angle between Y and Z is also 90 degree. Angle between X and Z is also 90 degree. So all three components, all three axes are perpendicular to each other. Similarly, Y and Z plane, J dot K. J dot K unit vector means scalar product of J and K. Component J unit vector है. Here is also 1 into cos 90, because unit vector का वैल्यू 1 होता है. J unit vector वैल्यू 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड 1 होता है. इधर है J unit vector, its magnitude 1. K unit vector, its magnitude also 1. 1 into 1, 1. And cos 90, और cos 90 फिर से कितना हुआ? 0. Similarly, KJ, K dot I. Scalar product both of them. K unit vector 1 into I unit vector 1 into cos 90. Cos 90 0 means if we have the component of I, J and K, then the product of I and J will be 0, J and K will be 0, it is also 0, and K and I also will be 0. So the scalar product of unit vectors I and J, J and K and I must be 0. Similarly, if we have the unit vector, two unit vector along the same axis, how? Two unit vector of the same unit means I dot I, J dot J and K dot K means vector I dot unit vector I. Dot product I unit vector magnitude 1 into I unit vector magnitude 1 into cos 0 means अगर कोई यूनिट वेक्टर x एक्सिस पर दो यूनिट वेक्टर हैं, दोनों का मल्टीप्लाई है, तो I डॉट आई कहेंगे उसको, और I डॉट आई सेम एक्सिस पर एंगल कितना होगा? 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है? मैक्सिमम 1 होता है. देन cos 0 will be 1, the resultant will be 1. It means if two vectors of similar component I dot I or J dot J or K dot K, its resultant will be 1. कितना? 1. Similarly, J dot J
that is 1 into 1 into cos 0, it is also 1. Similarly, k dot k, it also equal to 1. So when we have the scalar product of ij, jk, ki, its magnitude will be 0. If we have I dot I, j dot j, k dot j, this magnitude will be 1. Means I dot I equal to j dot j equal to k dot k equal to 1. तो सिमिलर यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट केवल 1 होगा. आफ्टर दैट डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स रिजल्टेंट विल बी 0. मे बी h to y, y to j, j to k, or maybe reverse of it. Maybe reverse of it. Is it clear? Now I want to take one example. Yes. Example is that scalar product of two vectors. Suppose vector A equal to axi plus ayj plus azk. Kind of similarly, vector B equal to vxi, vyj and vzk. Right. vzk ये हम पहले ऑलरेडी 3 डायमेंशनली पढ़ चुके हैं. ये ए वेक्टर के कंपोनेंट्स आ गए, ये बी वेक्टर्स के कंपोनेंट आ गए. नाउ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए axi plus ayj plus azk. Substitute the value of vector b from here, that is vxi plus byj plus bzk. We can take it equation 1 and equation 2. Clear? Simply substitute the value of vector A and vector B. Now product or multiply between them. How? axi bxi. axi को पहले इस पूरे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ayj को तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर azk को तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. सिंपल मेथड है, सभी जानते हैं. तो पहले मैंने axi ये कंपोनेंट लिया, axi मल्टीप्लाई विद bxi, ax bx, I into I. अभी हमने पढ़ा पिछले वाले में कि I डॉट I, j डॉट j एंड k डॉट k कितना होता है, 1 के बराबर होता है. तो यहाँ भी क्या आएगा, ax bx bx I into I 1. Similarly, ax by ये I कंपोनेंट, ये j कंपोनेंट, और I एंड j कंपोनेंट कितना होता है, 0. तो मैंने ब्रैकेट में लिखा 0. नेक्स्ट a मल्टीप्लाई विद bz, ax bz, और I कंपोनेंट और j कंपोनेंट दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 0. तो ये कंपोनेंट ब्रैकेट में कितना लिखा मैंने, 0. इसका मतलब देखो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, दो तो 0. अब क्या करना है, a by j का मल्टीप्लाई करना है इन तीनों कंपोनेंट्स के अंदर. क्लियर? a by j. नाउ a by bx, it is the component of j, it is the component of I, and j dot I कितना होगा, j dot I 0. तो a by bz 0 प्लस a by by, ये भी j का कंपोनेंट है, ये भी j का कंपोनेंट है. तो सिमिलर कंपोनेंट का वैल्यू 1 होता है. a by 1 प्लस a by bz, और j एंड k का प्रोडक्ट कितना होगा, 0. तो ये कंपोनेंट एक 0 आ गया, ये कंपोनेंट भी 0 आ गया. क्लियर? थर्ड, azk मल्टीप्लाई ऑल 3, तीनों में मल्टीप्लाई करना है. तो az bx इंटू 0 क्यों होगा, क्योंकि k और i का कंपोनेंट का मल्टीप्लाई कितना होगा, 0. सिमिलरली az by k और j का कंपोनेंट भी कितना होगा, 0. एंड नेक्स्ट az bz, कितना, az bz, दोनों सेम कंपोनेंट आ गए, दोनों सेम एक्सिस पर आ गए, तो मल्टीप्लाई कितना होगा, 1 होगा.
तो ये कंपोनेंट भी 0, ये कंपोनेंट भी 0। देखिए ऑल प्रोडक्ट कितने हुए? 9, 3, 3 एंड 3। इसमें से 6 आर 0। कितने बचे? केवल 3 कंपोनेंट बचेंगे। ऑल दीज 3 कंपोनेंट्स आर ऑफ सिमिलर, मींस I, J एंड K। तो क्या बचेगा? AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। It is the scalar product of two given vectors, वेक्टर A, वेक्टर B, जो इसके कंपोनेंट्स दे रखे हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अब एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास में, A डॉट B इक्वल टू AX BX, AY BY, AZ BZ। Is it clear? Clear? For example, vector A equal to 2I plus J plus 3K, vector B equal to I plus 3J plus 2K. Now we will find the scalar product of these two vectors. Clear? देखिए कैसे? Formula is that vector A, vector B, that is the resultant of these two, AB equal to AX BX, AY BY, AZ BZ। या तो इससे डायरेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज वेक्टर A डॉट B इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A, ये सारे कंपोनेंट मैंने रखे, वेक्टर ऑफ B के सारे कंपोनेंट एक ब्रैकेट में लिखे। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दैट। तो देखिए कैसे करेंगे। 2 I का कंपोनेंट कितना है? यहाँ 2। यहाँ I का कंपोनेंट कितना है? 1। 2 into 1, I डॉट I कितना होता है? 1 प्लस 2 into 3, 2 into 3 0 प्लस 2 into 2 0। मैंने इस 2I से तीनों को मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली प्लस J का कंपोनेंट, J कंपोनेंट कितना है? 1। 1 से 0 को मल्टीप्लाई, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 into 1 0 प्लस 1, और ये कंपोनेंट कितना है? 3। J के कंपोनेंट इसमें 3 और इसमें कितना है? 1 है। तो 1 into 3, और J के साथ कंपोनेंट क्या होता है? 1। क्लियर? अब J से K को कीजिएगा, प्लस 1 into 2 और 0। ये डॉट लगा रहा हूं, ये डॉट मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना है, पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है। प्लस ये थर्ड कंपोनेंट भी कैसे करता हूं, तो इसका कंपोनेंट K का कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होना है, ध्यान रखना है। K का कंपोनेंट कितना है? 3। तो 3 से I के कंपोनेंट के साथ में 3 into 1 ऑफ 0 प्लस 3 का into 3 0, क्योंकि J का सॉरी 3 यस 0, 3 का 2 के साथ में प्लस 3 into 2 ऑफ 1। मैंने अभी जैसे फॉर्मूला लिखा था वैसे सिमिलर कर लिया। तो क्या आएगा आगे देखिएगा, कौन कौन से 0 हो गए? ये 0, ये 0, पहला बचा केवल 1 वाला, 2 into 1 2 प्लस ये इधर आए 0, 1 into 3 1, ये आ गया, प्लस 3, और ये फिर से 0, ये 0, ये 0, इधर 0, और ये भी 0, ये कितना हो गया? 3 + 2 6। तो देखिए कितना आएगा? 5 + 6 11, 5 + 6 11। So this is the example of scalar product। क्लियर? अब एक छोटा सा शॉर्ट मेथड से इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट के लिए हमने अभी फॉर्मूले को ड्राइव किया था, तो इसका जो रिजल्टेंट आता है वो ही आता है, रिजल्टेंट ही आता है। तो अब इसको देखिए, इसी को एग्जांपल को लगा रहा हूं मैं, तो देखिए कैसे आएगा। यहां आप देखेंगे इसको एक बार, देखिए वेक्टर A डॉट B इक्वल टू, देखिए क्या लिखा, AX BX, मतलब AX कहां है? ये रहा, और BX कहां है? ये। I का कंपोनेंट, I का कंपोनेंट, XX दोनों I के कंपोनेंट, Y दोनों J के कंपोनेंट, Z
दोनों के कंपोनेंट, इनका मल्टीप्लाई करो बाकी सारे जीरो होते हैं। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद में जिसका वैल्यू आता है केवल उसको लिख लेते हैं। तो देखिए ax bx का मतलब है कि 2 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो 2 into 1 कितना आएगा बताएंगे, ax bx 2 into 1 प्लस ay by, देखिए ay कहां है, ये रहा, j का कंपोनेंट 1 है, by कितना है 3, 1 into 3 प्लस az bz के कंपोनेंट 3 2, 3 into 2 equal to 2 plus 3 plus 6 equal to 11। सिंपल मेथड से इसे याद कर लेंगे तो सिंपल मेथड से डायरेक्ट हो जाएगा। जब 2-4 एग्जांपल करेंगे फिर अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आपको स्केलर प्रोडक्ट कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से स्केलर प्रोडक्ट का आपको एक फॉर्मूला और बता दूं कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स क्या क्या पूछे जा सकते हैं, कैसे अपने को करने होते हैं, मैं बता देता हूं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और पीडीएफ आपके पास है। सपोज सेम एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल। देखिए, वी नो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर a मैग्नीट्यूड वेक्टर b मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है, समझना ध्यान से। a डॉट b इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मैंने ये मोड लगा रखा है, मोड नहीं भी लगाते हो तो आप शायद लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा। क्लियर? चलिए आगे। अब इसमें से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या हमें दिया जा सकता है। तो मैंने कहा a डॉट बी, तो a डॉट बी तो अभी हमने फाइंड किया, उससे आ जाएगा। a कैसे निकालेंगे और b कैसे निकालेंगे और cos थीटा कैसे निकालेंगे। क्लियर? तो देखिए cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b ओवर a इंटू b। क्लियर? बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट, अब हाउ वी विल ड्राइव ए, तो ए कैसे निकालोगे, वेक्टर, ये वेक्टर आ गया तो वेक्टर प्रोडक्ट तो इससे आ गया, लेकिन ए और बी कैसे फाइंड करेंगे। देन ए इक्वल टू अंडर रूट, हाउ, स्क्वायर ऑफ कंपोनेंट आई प्लस स्क्वायर ऑफ कंपोनेंट जे प्लस स्क्वायर ऑफ कंपोनेंट के, ये हमने शुरुआत में पढ़ा हुआ था। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स में मींस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। वाई, कंपोनेंट ऑफ आई 2, कंपोनेंट ऑफ जे कितना है 1, कंपोनेंट ऑफ के कितना है 3, दैट इज अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 9 कितना हुआ 14, 9 प्लस 10 4 14। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। सेम थिंग फॉर द b, दैट इज b इक्वल टू अंडर रूट, वही से स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट i, स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट j, स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट k। स्क्वायर ऑफ कंपोनेंट कितना है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 प्लस 9 प्लस 4, इट इज ऑल्सो आई थिंक 14। गुड, इत्तेफाक से दोनों 14 आ गया, बट 14 होता नहीं है सबका, सिमिलर नहीं होता है। मे बी a अंडर रूट 14, b अंडर रूट 14, a डॉट b वेक्टर से भी फाइंड किया हमने थोड़ी देर पहले, और अभी दोनों को फाइंड किया था तो फिर से बता दूं एक बार कितना आया था। a डॉट b इक्वल टू आया था हमारे पास में 2 प्लस 3 प्लस 6 दैट इज 11। a डॉट b भी फाइंड किया, कितना है 11। तो अब cos थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो cos थीटा इक्वल टू कितना आएगा, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b कितना है 11 अपॉन a एंड b। a कितना है अंडर रूट 14 इंटू b कितना है अंडर रूट 14। क्लियर? दोनों 14 14 है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसमें से cos थीटा फाइंड किया, a भी फाइंड कर सकते हैं, a एंड b फाइंड कर सकते हैं। मेन में तो हमारा फॉर्मूला है a डॉट b इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, a डॉट b इक्वल टू
ए बी कॉस थीटा। एंगल फाइंड करना हो तो कॉस थीटा इक्वल टू आ गया। कॉस थीटा के लिए ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट यहाँ से फाइंड कर लेंगे। रिजल्टेंट ऑफ ए इस फॉर्मूले से आ गया, रिजल्टेंट ऑफ बी इस फॉर्मूले से आ गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें से एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स यानी फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अभी इसी में से इसी से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। एक और छोटा सा एग्जांपल बात कर रहा हूँ कि इसको डेली लाइफ में हम कैसे यूज कर रहे हैं। डेली लाइफ में यूज करते हैं, देखिएगा एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा मैं आपके सामने। ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, बॉडी है, और ये कोई रफ सरफेस है। इस सरफेस पर इस बॉडी को स्लाइड करके आगे तक ले जाना है, आगे तक स्लाइड करके ले जाना है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? नाउ वी आर अप्लाइंग द फोर्स। अब फोर्स अप्लाई कर रहे तो देखिए, इफ आई एम अप्लाइंग द फोर्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैं इसमें सीधा सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मींस ये सीधा डायरेक्शन, या तो पुश कर रहे हैं या इधर से इसको खींच के ले जा रहे हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो दोनों में क्या आएगा, W इक्वल टू W इक्वल टू एफ डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ डी। दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0। तो cos 0 कितना होता है, मैक्सिमम 1, दैट इज एफ डी मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब हो गया कि जिस डायरेक्शन में हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो रिजल्टेंट वर्क डन मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट, सपोज ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन तो ये है और हमने फोर्स ये ऊपर से अप्लाई कर दिया, फोर्स से ऊपर से, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। मींस मैं ऊपर से इसको पुश कर रहा हूं नीचे की तरफ, नीचे दबा रहा हूं, और डिस्प्लेसमेंट इधर करना है, तो हाउ इट इज पॉसिबल, तो डिस्प्लेस नहीं होगा, मींस वर्क डन विल बी 0। क्यों 0 होगा मैथमेटिकली, क्योंकि W इक्वल टू एफ डी कॉस 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, 0, cos 90 0, तो वर्क डन कितना हो गया, 0। इसलिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को जिधर हम पुश कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करेंगे, वर्क मैक्सिमम। अगर जिधर पुश करना है उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे, वर्क विल बी 0। पुश करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स लगाया मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव, वर्क डन विल बी नेगेटिव। फिर से सुनिए, मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो अलोंग एक्स एक्सिस था, और फोर्स मैंने ये उल्टा लगा दिया एक्स डैश की तरफ, तो थीटा कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो वर्क कितना आएगा, W इक्वल टू एफ डी कॉस 180, और कॉस 180 होता है -1, दैट इज माइनस एफ डी। तो वर्क विल बी नेगेटिव। खींचना तो फॉरवर्ड तो आगे करना था, हमने पीछे खींच लिया, तो वर्क तो हुआ उतना, लेकिन वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो ये एप्लीकेशन है स्केलर प्रोडक्ट की, ये स्केलर प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है। आपने शायद हो सकता है 9th में इसका एग्जांपल भी पढ़ा होगा कि कोई भी वॉचमैन हमेशा अपने एक सीट पर बैठकर, अच्छा एक और ध्यान रखेंगे, वर्क इक्वल टू फिर से आएगा एफ डी इंटू कॉस थीटा। इसमें थीटा की वेरिएशन से तो होगा ही, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो भी वर्क डन 0, अगर फोर्स 0 है तो भी वर्क डन 0। लेकिन हम अभी एफ और डी की बात ज्यादा नहीं करें, हम बात कर रहे हैं कि थीटा का क्या रोल है, इसमें थीटा का रोल देख रहे हैं। तो जब आपने देखा होगा कि कुली, रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब कुली क्या करता है कि बैग लेके, किसी भी पैसेंजर्स के बैग लेकर वो क्या करता है, और सारे बैग्स अपने ये सिर पर रख लेता है, तो कुली का जो ये बैग होता है, बैग का जो फोर्स होता है, वेट होता है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है नीचे की तरफ। तो फोर्स तो लगा वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ, और कुली चलता है सामने की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन तो सामने हो गया, और इस सामान का जो वेट है, जो फोर्स है, वो वर्टिकली नीचे की तरफ हो गया। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और 90 डिग्री हो गया तो पुली का वर्क डन हमेशा इसीलिए फिजिक्स की लैंग्वेज में 0 कंसीडर किया जाता है। फिजिक्स की लैंग्वेज में पुली का वर्क डन हमेशा
जीरो कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हम वहां कुली के चलने का पैसा नहीं देते, हम वर्क डन काउंट करते हैं हमारे सामान का। तो सामान को तो कुली सारा का सारा कहाँ रख लेता है, अपने सिर पे रख लेता है। सिर पर रख लेता है तो वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट तो नीचे की तरफ रखे, फोर्स नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, इसलिए वर्क डन उसका क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर। इसी तरह से वॉचमैन जब पूरे दिन ड्यूटी तो करता है लेकिन वो एक ही जगह पर बैठा रहता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, इसलिए उसका वर्क डन भी क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। क्लियर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, स्केलर प्रोडक्ट के, एप्लीकेशंस हैं किसकी, स्केलर प्रोडक्ट के। तो स्केलर प्रोडक्ट का मैं जो पीडीएफ दे रहा हूं, पीडीएफ के साथ साथ में कुछ एग्जांपल सॉल्यूशन दे रहा हूं, कुछ एग्जांपल आपको करने हैं। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम रह जाती है, तो मेरा नंबर आपके उसमें पीडीएफ पे दे रखा है, आप उस पर कांटेक्ट करके मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे से समझ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई डाउट प्रॉब्लम है या यू कैन कंसर्न मी एट एनी टाइम। क्लियर। ओके, थैंक यू।